Hi guys, how are you? How's everybody? कैसे हैं आप सब लोग? Good? You're doing good? We're good, thank you. Yeah. Okay, so another day, time for another live. Oh, I see Kiran Mai also. Hi Kiran, joining here. Great. Okay. Hope everything is good back home. Yeah. Okay. Invite. We have Supriya Sangya. Supriya, I don't see Naz over here. So we were testing in the morning and yeah, so we were testing in the morning and a lot of you joined that time also. And I said we'll meet at 7 in the evening. So here we are. And yeah, we're waiting for, not yet, Acha. So what I'll do is we're waiting for for a student to join in. Naz. Yeah, I can see Naz is there. Hi, Naz. Yeah, but I don't see your request. So what I want to do today is I want all of you to meet a student of ours. Last time also we did that, and last time it was somebody who had beaten hands down behaviors in the kid. Yeah. And you heard her and academics and got rid of behaviors. And this time we have somebody whose kid wasn't speaking one word and now is at a full sentence level. And I have seen how frustrated that parent was and how difficult it was. And we've been with her, and I wanted her to share her journey with you all because it's a great feeling to come where you reach from where you are. Binte Muhammad. Is that yours, Naz? Yeah. I don't have a live request from you. Supriya, Akhila, Bhavna. No, I don't see a live request here. Silent repent Binte Muhammad. Okay. Yeah. So what I'll do is until Naz joins in, I'll take up your questions and answers. Yeah. Kiran, in case Naz is not able to join in, is it possible for you to join in? Yeah. Do you have adequate signal? Are you there? So I'll take your questions and answers, guys. I'm from Malaysia. Hi. Hi there. Okay. What I'll do is I'll take your questions until I can. Monica, Pratibandla. Yes. I see Naz coming now. Yes. Okay. I see Naz coming now. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Hi. Good evening, Naz. Good evening, ma'am. Good evening. Lovely. And yeah, how are you? Yeah, I'm good, ma'am. How are you, ma'am? I'm good. So, people, here is this person. And do you remember, Naz? Yes, ma'am. I said, do you remember the January of 2024? Yes, ma'am. I do remember. How can I forget that? It's a really great experience for me, ma'am. It's really nice Do experience you for want me. to share that January of 2024, exactly what happened? And then you had joined us much earlier also, Yeah, but yeah. I have joined in 2023 August.
It's हाँ, almost 2 मतलब years पानी next month. चल So it is going to complete 2 years for next month. Before that, what I was thinking, I just want to share my history, ma'am, how I have started. So one day what happened, we went to the doctor for vaccination for Ahan. He is a 5.5 years old right now. So what happened, because of his behavior, climbing on the table and everything, jumping on the everything table and all, that doctor suggested me he might have autism. You just go and assist with him. So what happened next? फिर वहां पे गए मैम हम लोग। मुझे नहीं लगता था कि ऑटिज्म, मैंने पहली बार सुना था मैम ये नेम, मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। आई वॉज टोटली ब्लाइंड, तो भी मैंने लाइटली लिया, उसका उतना सीरियस नहीं लिया था। फिर आके जब देखा तो सीरियसली इट वॉज अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है बोल के। फिर वन डे क्या हुआ, हमने असेस किया मैम, जब वो 2.8 ईयर्स का था, दैट टाइम ही वॉज 2.8 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही लाइक देखा, तो आपका ये क्या जो वेबिनार रहता है ना मैम, तो देख के बोला कि 3 आवर्स का वेबिनार है, चलो अटेंड करेंगे। ही वॉज टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट मैंने बैठा और देखा कि डेफिनेटली हमें करना ही है, वी हैव टू अटेंड दिस एंड वी हैव टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बिहेवियर्स थे, वो सारे गए मैम, डेफिनेटली पूरा चले गया। अभी थिंग इज व्हाट बोले तो स्पीच नहीं था उस वक्त उसका, तो बहुत ही एक्चुअली उनसे ज्यादा हमें मेल्ट डाउन होता है मैम। ऐसा होता है कि कैसे इनको टैकल करें, सीरियसली वो इतना टेंशन रहता है कि बच्चे कब बोलेंगे, और हम लोगों के दिमाग में एक ही बात रहती है कि जब बोलेंगे तो तभी सब कुछ होगा और बिहेवियर्स भी कम हो जाएंगे, ऐसे सोचा था। तो स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कंप्लीटली 1 ईयर उसके लिए थेरेपीज कंटिन्यूस था, ओटी लिया, स्पीच लिया, सब कुछ लिया, बट नो चेंज। फाइनली आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद उसने फर्स्ट वर्ड एक ही, दैट आपका जो प्रोग्राम है ना, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन दे दो, वही एक किया था। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला मैम। फिर भी मैं ट्राई करते रही। स्टार्टिंग ब बोलता था वो, बस बनाना भी आ गया। नाउ ही इज इन 4 word phrases, now he speaks 1 to 2 sentences. Thanks to you मैम, थैंक्स अ लॉट। एंड जब मैं वहां पे गई थी आपके इसमें अटेंड की थी 2024, उसका शेयर करना चाहूंगी मैम। तब तो लाइक पूरा डाउन था मैम, कुछ भी एनर्जी नहीं थी। आपको देख के एनर्जी he was totally depressed and वो मेरे को उसके पीछे मिली, स्टेज के पीछे मिली मैम। एंड आई वाज लाइक क्राइंग मैम, पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का। लकीली मैं आपको सीरियसली दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी मैम, क्योंकि जो छोटी एज में हम लोग उनको कर सकते हैं, वो बड़े होके जाके करने के बाद इम्पॉसिबल है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड यू टू मैम कि इतना अच्छा प्रोग्राम हमें मिला, ताकि हमारे बच्चों को हम लोग इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, बट हाँ डिफिकल्ट ज्यादा हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट ज्यादा हो जाते हैं मैम। फिर भी उनको मतलब उनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैम मैनेज करने। हाँ हाँ यस। तो उसके बाद फिर आपने पीछे लगा, आपसे मिली, फिर कंटिन्यूस आपका प्रोग्राम फॉलो किया, हर चीज आपने जैसा बोला वैसा फॉलो किया। आई एम रियली थैंकफुल मैम कि वो अभी ही इज स्पीकिंग वेरी नाइसली। और जो भी नीड बेस्ड रहता है, पहले मीनिंगलेस था मैम उसका, अब तो मीनिंगफुली बोलता है मैम। और 1 मंथ में उसके इतना अच्छा स्पीच इंप्रूव हो गया है, आई कांट एक्सप्लेन। पहले मेरा ही फॉल्ट था कि मैं ही डिप्रेस थी कि मैं कुछ काम नहीं कर पाई। हम लोग पेरेंट्स क्या होते हैं कि पहले आधा तो ऑटिज्म सुन के आधे हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है। नेक्स्ट थिंग, जब हम करने लगेंगे तो डेफिनेटली वो ट्रैक पे आ जाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो डेफिनेटली खुशी होगी और प्रोग्रेस भी दिखेगा मैम। थैंक यू सो मच। So I would want, nahi Naz, you don't go anywhere. I would want, see, I answer people all the time. पॉडकास्ट में, लाइव में, सब जगह मैं बोलती रहती हूँ, मेरी इधर दर्द होता है बोलते बोलते। बट आई एम कमिटेड टू इट, टू आंसरिंग पीपल। बट आज मैं ये चाहती हूँ, बोलते हैं कि एक टीचर की सबसे बड़ी तारीफ क्या है एक टीचर की? अगर उसका स्टूडेंट वो टीचर के जगह पर जा सके, ले सके और टीचर को रिटायर करे। यस, इससे बड़ी तारीफ नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता मैम, क्योंकि वो एक देन है मैम। अगर टीचर के जैसे ही पेरेंट्स, इसका मेन बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम का बोले तो, हम पेरेंट ही टीचर बन के बच्चों को थेरेपिस्ट बन रहे हैं। यस। तो आज यहाँ पर आप वो टीचर बनेंगी
और लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, Sure. और कहीं पर भी आपको जरूरत है तो मैं साथ में हूँ, अगर लगेगा कि हाँ ये मैं नहीं आंसर कर सकती। बट Yes, दैट गिव्स मी इमेंस प्राउड। लास्ट टाइम भी हम जया को हमने रिक्वेस्ट किया था तो शी केम, एंड इट yeah. वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि मतलब वो वाली जो ना मेरा स्टूडेंट है, ऐसा वाला। सच में आप प्राउड फील हो रहा है मैम, मुझे खुद ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ ऑनलाइन पे हूँ। ये दिन देखने के लिए रियली मैम बहुत कुछ तो किया होगा, इसीलिए आज मिला होगा मैम के, ऐसे लगता यस, है। और आगे भी करना है, अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने बोलना सिखाया बच्चे को, बस अभी आपका मीडिया गाइडेंस रहना है मैम, कभी भी प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप दिस प्रोग्राम, आई रियली रिक्वेस्ट यू मैम, प्लीज डोंट स्टॉप। बहुत तो पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है मैम। या तो अब आप ऐसा करें कि चैट दिख रही है आपको, कैन यू सी द चैट? यस मैम। हाँ, तो यस। पीपल प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस टू नाज। या ओके मैम, प्लीज लिसन मी, किसी ने लिखा है, चंदन सिंह। मैम ओके एंड मैम एडीएचडी चाइल्ड का स्पीच डिले होता है, हाँ, इतना ही क्वेश्चन डाला है मैम, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। एडीएचडी चाइल्ड का स्पीच डिले होता है, बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट मैम। सो मोनिका, I क्या want हम to talk with you, Kushal Chaudhary. Okay, please tell me. Huge achievement. I want to talk with you, अखिला। हाँ तो पूछिए ना सवाल। बच्चों का स्पीच होता है बट अंडरस्टैंडिंग लो होने की वजह से कम्युनिकेशन नहीं आता है, क्या करना? निशात शाहनवाज, हाँ आंसर करें। अंडरस्टैंडिंग पहले तो देखिए, दोनों साथ ले लेके चलना है, मुझे तो बोलती हूँ मैं, क्योंकि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन होगा, कैसे बोले तो उनको रिसेप्टिव जब अंडरस्टैंड होगा, रिसेप्टिव के बारे में मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट का बारे में, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल ग्लास ले रहे हैं हम, उसको पता नहीं है कि ग्लास मीन्स क्या, तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो वो एक्सप्रेस कैसे कर पाएगा। तो उसको पहले अंडरस्टैंडिंग भी करवाना जरूरी है, तभी, और आप उसको प्रैक्टिस देते रहेंगे तो डेफिनेटली उसको एक्सप्रेसिव भी आएगा। ऐसे हम लोग निराश होकर बैठेंगे कि नहीं आएगा बोले तो कभी नहीं आएगा। मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ, बर्थ से मैंने कहाँ तक फोर फोर फ्रेजेस 5 फ्रेजेस अभी बोलता है वो, जस्ट बर्थ से स्टार्ट किया था उसने। तो अभी मैं उसको लाइव दिखा सकती थी आपको, नहीं अभी मैं ये चल रहा है, लाइव चल रहा है बोल के मैंने वो डिस्टर्ब करेगा बोल के उसके पापा के साथ भेज दिया मैम मैंने पीछे थोड़ा। तो डेफिनेटली मैं ट्राई कि कभी मैं डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन उसका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन, आप नहीं अंडरस्टैंड। ना, थोड़ा सा पिरामिड के बारे में बात करें कि हाँ जो आप मतलब रिसेप्टिव को कैसे बिल्ड करना है, वो पिरामिड के बेसिस पे बिल्ड करना है आपको, है ना? तो वो या थोड़ा सा समझाएं। हाँ देखिए, लैंग्वेज में भी एक पिरामिड होता है। डायरेक्टली आप बच्चा बोल रहा है तो इन दैट सेंस आप डायरेक्टली नहीं जाते और 4 to 5 सेंटेंस नहीं बोल सकते कि जॉब ऐसे बोलो कि मम्मा मुझे खाना दे दो, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। उसको एक एक वर्ड पर आपको काम करने पड़ेगा सिंगलली। लाइक आप उसको भूख लगी है तो पहले उसको प्लेट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और बोलना है कि वो प्लेट वो लेकर आएगा और उसको बोलेगा प्लेट, तो ये रिसेप्टिव हो गया। तो ऐसे ही करके अभी खाना सिंगल वर्ड कैसे बोलेंगे, अभी सपोज खाना दे दो, ये 2 वर्ड्स हो जाएंगे। अब खाना एक सिंगल वर्ड है, ओके 1 वर्ड है। तो वैसे ही आपके बच्चे का असेसमेंट करेंगे, आपका बच्चा कौन से लेवल पे है, 1 वर्ड पे है क्या 2 वर्ड पे है। तो वो बेसिस पे आप पिरामिड बिल्ड करेंगे, और पिरामिड में वही 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड ऐसे लेवल आता है। तो वो बेसिस पे आप ट्राई करेंगे, डायरेक्टली आप बच्चे को सेंटेंस पे नहीं और लेके जा उसमें सकते। भी व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, उसमें व्हाई, हाउ। भी स्टेजेस हैं, लाइक फर्स्ट व्हाट, ये क्या है, फर्स्ट वो आएगा व्हाट हु, उसके बाद कौन के ऊपर जाएगा, लाइक हमारा जो भी रहता है कौन, फैमिली फैमिली मेंबर्स है। फिर व्हेन जाएगा कब, फिर वेयर देन हाउ, ऐसे स्टेजेस रहेंगे। पहले आपको स्पेशली लैंग्वेज पर काम करना है, लाइक 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड फ्रेजेस पे काम करना है। उसके बाद पिरामिड पे जाना है, एडवांस लेवल पे। ऐसे 2 पिरामिड्स हैं। या थैंक यू। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या मेरा बच्चा 4 ईयर का है, उसको एडीएचडी है और हाइपर है और स्पीच डिले है, कैसे ठीक करूं? ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पहले फिजिकल वर्क करवाइए, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं एडीएचडी डायग्नोस हुआ है, तो उसको पहले वो कामली बैठेगा तभी स्पीच आएगी। उसको जितना आप फिजिकल वर्क उसको थकाएंगे, उसको फिजिकल वर्क देंगे तो वो काम डाउन होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा उसका चेक कीजिए, समटाइम्स सेंसरी इश्यूज भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कि वो है क्या क्या।
क्योंकि जंपिंग भी सेंसरी में कंसिडर हो सकता है, तो आपको डायग्नोस होना करना है या फिर आपको चेक करना है कि बिहेवियर ही है क्या। हम लोग मैडम के प्रोग्राम में हम लोगों को सभी सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंसरी है या बिहेवियर। अगर बिहेवियर है तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेंसरी है तो उसको जो भी सेंसरी डाइट दे के उसको पहले काम डाउन कराएंगे, एक तरफ बिठाएंगे और उसको लैंग्वेज पर प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद पहले फिजिकल वर्क ज्यादा करवाइए। इज इट ओके ना मैम? हाँ, बहुत सारा देखिए, ये तो अभी एकदम संक्षिप्त में इन्होंने बताया है। शी सेड इट वेरी वेरी ब्रीफली, ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर अदर क्वेश्चंस टू बी टेकन, but you are going to have to structure the child's world, structure the child's learning one step at a time on the 5 finger model. 5 finger model समझाएंगे जरा क्या है नाज? 5 लाइक फर्स्ट बिहेवियर पर काम करना है। अगर बच्चे में कुछ बिहेवियर है तो पहले आपको चेक करने का। अगर बिहेवियर आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग लैंग्वेज पर जाएंगे। वैसे ही साइड बाय साइड लैंग्वेज बिल्ड करेंगे। बिहेवियर के साथ भी काम करते रहना है और लैंग्वेज भी। उसके बाद बिहेवियर, लैंग्वेज, उसके बाद में ये सोशल। बच्चों को जितना होता है सोशल करवाइए। आपके घर में अगर कोई उसके बच्चे के साथ सिबलिंग है तो उसके साथ खिलवाइए, या आपके घर में ही खुद प्ले डेट करवाइए। आप बच्चे के साथ जितना इन्वॉल्व होंगे ना, डेफिनेटली बच्चा सोशल हो जाएगा। उसको अकेला मत छोड़िए। स्ट्रक्चर द एनवायरमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैम ने बोला है, विजुअल शेड्यूल बना के उसको पूरे अकॉर्डिंग टू विजुअल शेड्यूल, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता ना, हमें ही दिखाना है। दे आर टोटली ब्लाइंड, एम्प्टी है उनके दिमाग में, तो हमें फीड करना है सारा इनपुट। तो जैसे जैसे हम इनपुट फीड करेंगे उनको आइडिया आ जाएगा और वो फॉलो करेंगे। उसके बाद में ऐसे ही सोशल हो जाएंगे। उसके बाद एडीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एडीएल जो डेली लिविंग पे है उस पर काम करना ही है। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो तो फर्स्ट गोल है उनको इंडिपेंडेंट बनाना हमारे लिए। तो एडीएल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको उस पर काम करती है। दैट इज फोर्थ। ये है फाइनली एकेडमिक्स। फाइनली एकेडमिक्स। तो ऐसे आपको काम करना है। मेरी बेटी जब कोई हंसता है तो रोने लगती है। मे बी वो बिहेवियर ही हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे का भी नॉन सेम फंक्शनल रिजिड पैटर्न है। एक बार दो बार हुआ, उसके बाद बच्चे ने आदत पकड़ ली। आदत पकड़ ली। नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न क्या है? अभी बच्चा कंटिन्यूस वही कर रहा है, सेम थिंग, और हम लोग उसको करने के लिए दे रहे हैं और उसको कुछ भी वर्क नहीं दे रहे और वो उसी में एंगेज है, तो नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बच्चे सेम थिंग रिपीट करने लगेंगे। आई होप यू गॉट। बेसिकली क्या हुआ होगा शुरुआत में कि एक बार कोई जोर से हंसा होगा, हाँ, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, तो उस बच्चे को क्या थोड़ा डर लग गया या कुछ ऐसा हुआ, तो रोया एक आध बार, तो सारे उसको प्यार करने आ गए होंगे। अब क्या हुआ, बच्चे को आ गया मजाक कि अच्छा मतलब सारे आ जाते हैं। अब उसके बाद भले वो डरा या वो नहीं डरा किसी के हंसने से, लेकिन हंसने पे उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि सब अटेंशन देने पहुंच गए। हाँ, अब 4 बार ये काम किया, 5वीं बारी वो रिजिड पैटर्न बन गया, वो आदत पक गई। यस मैम। तो अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसका पूरा प्रोटोकॉल होता है डियर। एक्सपेक्टेशन सेटिंग, प्रीएम्प्टिंग, सेंस ऑफ लॉस, फिजिकली फॉलो थ्रू, ये पूरे स्टेप्स जो है मैं अभी जो नेक्स्ट हमारा मास्टर क्लास होएगा उसमें विद प्रूफ विद एग्जाम्पल एक एक करके आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, सिखाऊंगी कैसे होते हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत मोटे तौर पे बताऊं तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग में आप क्या बोलेंगे कि बेटा आपको वो अंकल हंस रहे हैं, आप रोओगे नहीं। जैसे हमने अभी अभी उसका डाला था ना, वो छोटी बच्ची का कि उसकी बहन ना बोलती थी तो ये रोने लगती थी, और फिर उसने बोला कि नहीं तुम रोओगी नहीं अगर बहन ने ना बोला तो, और फिर सिचुएशन कॉन्ट्राइव किया, जबरदस्ती ना बुलवाया उसके सामने और बोला मैं अभी हैंगिंग बार उतार दूंगी अगर रोई तो, और वो बच्ची रोई नहीं। तो क्या है, सेंस ऑफ लॉस देके, एक्सपेक्टेशन सेटिंग देके, प्रीएम्प्टिंग करके, ये सारे स्टेप्स के साथ अब ये स्टेप्स आपको सीखने पड़ेंगे। यस, आप मैम प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो उसमें सभी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप फॉलो करेंगे तो। मैं खुद बोलती हूँ मेरे बच्चे के पे बहुत सारे बिहेवियर्स थे, सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं अभी। कुछ दिन लिसनिंग अच्छी होती है एंड कुछ बहुत फास्ट हो रहा है। मैम मेरे बेटा मॉल में या बिल्डिंग में जहां भी स्टेयर होते हैं, मार्केट इज सो, मैम मैं जो करंट रहेगा वही पढ़ सकती हूँ। मेरे बेटे को हाइपर ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिव है, तो क्या करे?
रुकिए रुकिए, मैं नीचे कर देती हूँ आपके लिए। कहाँ गया? It is moving, ma'am. अच्छा, इट इज लॉट ऑफ पीपल आर, हाँ। रुको, आई एम ट्राइंग टू गेट यू द क्वेश्चन। वेट 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 गाइस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत लिखिए, फिर मैं भी नहीं, मेरे को भी नहीं मिल पाता है। और इतना बड़ा मैम, मेरा बेटा मॉल में, बिल्डिंग में, हाँ, जहाँ भी स्टे होते हैं क्या उसमें हम इनके बेबी को देख सकते हैं? लाइव आ सकता है? अच्छा, आपने अभी भेज दिया है, ले आओ। आहान, come here. आहान, अच्छा, हाय मैम, हाय मैम, अच्छे से, हाय मैम, हाय, हेलो, हेलो आहान, हाय मैम, हाय मैम, यस मैम, हाउ आर यू? ओ भाग गया। आहान, come here. Okay, you want? Yeah. How to work on understanding of a child 5 years? She is verbal but shows a lot of tantrums. Okay. हाँ, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, हाइपर एक्टिविटी कैसे मैनेज करें। देखिए, आपको विजुअल स्केड्यूल बनाना होगा, पूरा दिन बिजी रखना होगा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, पूरा बिजी रखना होगा, तब आप हाइपर एक्टिविटी शुरुआत के दौर में। बाद में उसको जब आ जाएगा अपने आप से वो करने लगेगा। KYCP प्रोग्राम क्या है अल्पा, एक्सप्लेन करोगी नाज? यस मैम, मैं KYCP तो कर ही दूंगी, स्टूडेंट से करे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलो। KYCP प्रोग्राम इज बेसिकली एक नो योर चाइल्ड प्रोग्राम। आपके बच्चों में कैसे काम करना है, क्या क्या करना है, ये बेसिक 1 ईयर का प्रोग्राम है। तो उसमें आपको मैम बताएंगी कि आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, दिमाग में क्या डेफिसिट है, हमें उसके साथ कैसे काम करना है। तो उसमें पूरा डिटेल रहेगा और उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे, लाइक सोशल, लैंग्वेज, ADL, ये सारे मॉड्यूल्स रहेंगे। आपको चेकलिस्ट दिया जाएगा, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एवरी मंथ गोल लेना है और उस पर काम करना है। अगर फर्स्ट और एकेडमिक, ये सारे 5 चीजें हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं उसमें। बिहेवियर फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद में लैंग्वेज, सोशल, एकेडमिक एंड ADL भी आप बिहेवियर में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका मॉडल नहीं बनाए, लेकिन आप ले सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप बिहेवियर में कंसिडर करते हैं। तो ये सब मैराथन में आएगा। आप मैराथन ज्वाइन करेंगे तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन KYCP में 1 ईयर का मॉडल प्रोग्राम रहेगा, उसमें वीडियोस रहेंगे मैम के, आपको देखना है और उस पर जैसे एक्सप्लेन किया है मैम ने उस पर काम करना रहता है। प्लस 168 सेशंस है एजुकेटर्स के थ्रू, और मेरे साथ 52 सेशंस है अलग अलग। मेहनत आपकी लगेगी, ये सबको बताओ भाई। हाँ, मेहनत हमें देखना है और देख के वैसे ही सेम फॉलो करेंगे और बच्चों के साथ वर्क करेंगे। लाइक आप एकेडमिक का लैंग्वेज का ही ले लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज में ही बहुत प्रॉब्लम रहता है और बिहेवियर में रहता है। उसमें मैम ने हर एक चीज एक्सप्लेन की है, आपको देखेंगे, देख के लाइक स्टार्टिंग बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, लाइन डाउन पे कैसे उनके साथ हम लोग, जैसे बताया मैम ने, एक्सपेक्टेशन सेटिंग, प्रीएम्प्टिंग, ये सब एंड फिजिकली फॉलो थ्रू, उसके बाद में रेनफोर्समेंट करके ये करना है। तो ये सब एक्सप्लेन किया जाता है, उसको फॉलो करना है। आपने KYCP प्रोग्राम ज्वाइन किया है? अल्पा पूछ रही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने पहले वही ज्वाइन किया। 1 ईयर तक मैंने 1 मंथ ही मैंने, उसके बाद नेक्स्ट महीने मैराथन ज्वाइन किया। वो 1 ईयर तक एक्टिव रहता है, उसके बाद में आपको फिर से ये करना है, रिचार्ज करना है। तो क्या सजेस्ट करेंगे बाकियों को जोया, मैं तो इस जर्नी पे? मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूंगी मैम। बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, OT के पास जाते हैं, स्पीच के पास जाते हैं, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है मैम। खुद पर्सनली मैं भी फील करती हूँ। जाइए, मैं मना नहीं करती अगर बहुत सारे इश्यूज हैं तो, लेकिन ये प्रोग्राम आपको घर बैठे ही हर चीज मिलेगी आपको, कि बच्चे के साथ कैसे काम करना है, मेन थिंग। अगर आप ही खुद मदर ही जितना मदर कर सकते हैं उतना बाहर वाले नहीं कर सकते। तो आप और मैम तो लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए, स्पेशल एजुकेटर भी हैं और मदर भी हैं। जैसे उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, वो तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन ही है और हमेशा रहेंगे मैम। तो वैसे ही हमें भी अपने जय के जैसे हमारे बच्चों को एक फील्ड में उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, आगे लेके जाना है। इसीलिए घर पे रहिए और सेम थिंग फॉलो कीजिए। और KYCP के साथ मैराथन भी ज्वाइन किए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा आपको, जल्दी फास्ट मूव हो जाएंगे। अब KYCP में क्या होता है,
हमें देखने से करने से, इंस्टेड ऑफ दैट आपको स्पेशल एजुकेटर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपकी, वो मैराथन में एग्जैक्टली बताएंगे। मैराथन में क्या है, हर एक एवरी मंथ न्यू मैराथन रहता है, लैंग्वेज, सोशल, अभी स्पीच। मैराथन की बात मत करो, क्योंकि मैराथन में आपका हार्डवर्क भी बहुत होता है। पहले लोगों को थोड़ा हार्डवर्क की आदत डालने वेरी दो। ट्रू, वेरी ट्रू मैम। हाँ, तो हाँ, केवाईसी बगैर बगैर कुछ सोचिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत, केवाईसीपी से थोड़ा थोड़ा रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट के लिए थोड़ा आदत, थोड़ा ग्रीड, हाँ, वो फिर वो गाइडेंस की जरूरत है कि हम लोग कहाँ सही कर रहे हैं कहाँ नहीं, इसलिए मैंने मैराथन के बारे में बोला। लेकिन हाँ, केवाईसी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख के भी फॉलो करके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चे में, और कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे हमें यकीन ही नहीं होगा। इसीलिए आई रियली बढ़िया। रिक्वेस्ट, आप प्लीज ज्वाइन केवाईसीपी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज हम लोग सोच सोच के ही आधा वक्त निकाल जाते हैं। कैसे 2 years मैम ने फर्स्ट टाइम बोला था कि, मुझे याद है अभी भी, जो स्पेशल क्लास एक 1-to-1 सेशन में, कि 1 year तो बैठे बैठे ही निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही हो रहा है, वक्त ऐसे निकल रहा है कि हम लोग थेरेपीज में मूव हो रहे हैं इधर उधर, और बच्चे के साथ कुछ काम भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए घर पे रहेंगे, काम करेंगे तो सबसे प्रोग्रेस ज्यादा दिखेगी। रिजल्ट कब आया नाज? सॉरी मैम। साफ लफ्जों में, सबसे ज्यादा रिजल्ट कब आया? आहान का मैम, अभी जब 2। जब थेरेपी लेके गए हो, या जब खुद अपने सर पर मुसीबत की ऐसी तैसी कराओ, मुझे करना है, मैं कर रही हूँ? मुझे कर जब जब हम लोग जी तोड़ के काम करते हैं ना मैम, थेरेपिस्ट भी करते होंगे, लेकिन जो हम लोग जी तोड़ के, हमारा बच्चे के कंसर्न हमें रहता है मैम। उन लोगों के लिए एक, आई डोंट नो वो क्या समझते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जब एक माँ करती है, जो हम खुद करते हैं, तभी रिजल्ट मिलेगा मैम। ये तो हंड्रेड यस। परसेंट श्योर है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी निकल रहा है, और सोच सोच के ही हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट काम करेंगे। बहुत ज्यादा ये बात नहीं बोलनी है, नहीं तो लोग बोलेंगे अच्छा फिर इसको कोई कमीशन मिल रहा है। नो कमीशन। मैम आपके साथ लाइव आना इज एक, क्या बोलते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एक, ये इंस्पिरेशन अपने आप में मिलती है मैम। इसमें कोई कमीशन नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। हाउ लॉन्ग इट सबसे टुक बड़ा चाइल्ड टू मेक सबसे फ्रेजेस। बड़ा कमीशन हमारे लिए यहाँ ये है डियर, कि या एज अ कम्युनिटी हमको ग्रो करना है। या ऑटिज्म श्योर। को उस डिसेबिलिटी वर्ड से बाहर लाना है। ये माँ बाप के खुद एफर्ट मारे के बगैर से नहीं होने वाला है। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है मैम। वक्त ज़ाय हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। यस। ठीक है थैंक मैम। यू सो मच नाज। मैम इट थैंक्स वॉज अलॉट। वंडरफुल हैविंग यू एज ऑलवेज। थैंक यू जैसे सो मैं आपको इंटरनल ग्रुप्स में चीयर करती हूँ, यस, ये देखो आ रही है हमारी। माय प्लेजर। प्लीज ज्वाइन एवरीवन विदाउट मिसिंग। ये कोई कमीशन नहीं है, अगेन मैं बोल रही हूँ। ये फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, ज्वाइन दिस केवाईसी एंड You know what happened? 1 month आई एम टेलिंग यू। हमारी भावना महेश्वरी है ना, जानते हो ना, यस मैराथनर वो भी। मैम। हाँ तो वो इतनी एक्साइट हो गई, उसके 19 साल के बच्चे का रिजल्ट आया। वो मैम। तो ना चुप ही ना करे उसमें, बूट कैंप में। अरे नहीं, मैं तो आपको बोला, आपको तो ये करने करना मैंने बोला भाई, रीजन क्या हाँ, है, अच्छा बड़े चुप बच्चों में चुप। भी रिजल्ट आते हैं, मैं नहीं करके नहीं, जितना छोटे में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा जल्दी जल्दी फास्ट, आपको बड़े में और थोड़ा स्ट्रगल डालना पड़ेगा। इसीलिए हाँ। छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये। इसलिए बाद में मेरे को बोलती है, बहुत गुस्से में, मेरे को मैसेज किया है कि आपको कमीशन मिला है क्या? तो ओके मैम। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अपनी, अच्छी बात है कि सबको जगाना कि देखो यहाँ कुछ ऐड करो, लेकिन एक्साइटमेंट भी कंट्रोल में रखो, नहीं तो लोग को लगने लगता है कि पता नहीं क्या है। नहीं नहीं नहीं, सो ऐसा कुछ पीपल, इफ यू सीरियस अबाउट योर चाइल्ड्स ग्रोथ, नहीं। एक बात समझ लीजिए, रजनी होए, कोई होए, कोई, लेकिन भरोसे का होना चाहिए जो भी यस। हो। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे ना, जब तक आप गाइडेंस लेके काम नहीं करोगे, तब तक कुछ होगा नहीं, ये तय है, ये तय है। क्योंकि आप बच्चे के साथ रहते हो, और आप 24/7 अगर आप सीखे हुए हो तो आप काम करते रह सकते हो, उसको अपना वे ऑफ लाइफ बना सकते हो। तो अब हमारी नेक्स्ट वेबिनार होएगी ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। आज वेडनेसडे है ना, आज क्या है, 15, आज 15 है ना? हाँ, आज 15, यस मैम, यस मैम। 15, 16,
देन 17 हुआ ना, नेक्स्ट 17 को हमारी फ्राइडे को वेबिनार है, 17 हुआ या 18 हुआ देख लेना, फ्राइडे को 7 to 10 PM, 7 to 9:30 PM। आप में से जो जो इंटरेस्टेड है वेबिनार ज्वाइन करने में ना, टाइप आई, ताकि मेरी टीम जो है आपको वेबिनार का लिंक दे सके। और जितना जल्दी, भले आपका बच्चा छोटा है बड़ा है जो कुछ भी है, जितना जल्दी हो सके सिचुएशन को ना अपने हाथ में लो, ताकि एक जिंदगी को सेफ गार्ड किया जा सके। या थैंक यू सो मच नाज, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, everyone. Yeah, thanks a lot, ma'am. Bye, ma'am. You make me proud, girl. Bye. Love you, ma'am. Thank you. Yeah. Bye. Bye, people.